Question number 301, P.R. Natarajan ji. Question number 301, sir. माननीय मंत्री जी ने किया. Number 301. Yes. A statement is laid on the table of the House. I am asking, under Strive scheme, the Odisha Coimbatore has granted 40 lakhs. It was in the year of 2008. What is the contribution made by the NDA government for the past 7 years, sir? Repeat it. Yes. This is my supplementary. Can you repeat that question? I can't hear you. See, under Strive scheme, the Odisha Coimbatore has sanctioned 40 lakhs. It was in the year 2008. Yeah, it was in the year 2008, sir. So what is the contribution, what is the investment made by the NDA government for the past 7 years, sir? Sir, it is not clear what the member is referring to specifically on the issue of the 40 lakh investment, but I can certainly say, sir, that over the last 7 years, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under the Skill India mission has laid an extensive network of skilling and training centers, and it consists of, sir, 14,711 industrial training institutes in, delivering 143 trades. Specifically, sir, the member has asked a question about Coimbatore, and I would like to point out to him, sir, that in Coimbatore there are 19 ITIs and delivering 89 trades, different trades and skills in different trades. And in particular, sir, there is we have trained in Tamil Nadu 7,36,143 students under the PMKVY scheme, 90,359 students under the NAPS apprenticeship scheme, 34,965 under the JSS scheme, and a total of 2,68,472 students under the ITI CTS scheme. Specifically for Coimbatore, sir, I would like to point out to the honorable member that we have 19 ITIs and we have trained almost 70,000 students in various 40,000 students in various schemes in Coimbatore. Sir, to the specific point about a technological center, there are 18 technological centers being run by the MSME ministry. There has been one that is being sanctioned for Coimbatore. We are awaiting land allocation by the state government of Tamil Nadu. And if that land is allocated, 20 acres of land is allotted, we will be certainly setting up a technology center or a technology extension center in Coimbatore, sir. Question number 302, Dr. Manoj Rajoria. धन्यवाद सभापति महोदय जी. मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है. धन्यवाद सभापति महोदय जी. माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है. लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है. इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया. इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई. मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीज़ों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है?
आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज़ है, जो वहाँ पे क्रूज़ भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहाँ पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष जी, मचकोल और जो अन्य स्थान बताए हैं मेरे मित्र ने, उसको भी भारत सरकार कंसीडर करेगी। अभी भारत सरकार ने 65 ऐसे धार्मिक स्थलों को कंसीडर किया है और 65 स्थानों पर ये कार्य हो रहा है और लगातार भारत सरकार ऐसे सभी अपने ऐतिहासिक और धर्म से जुड़े हुए स्थलों के प्रति संवेदनशील है और उनको लगातार, जो अब तक इतनी स्टेट ऑफ निग्लेक्ट में पड़े रहे, उनकी देखरेख कोई करने वाला नहीं था, तो उसके रहते भारत सरकार ने बहुत अधिक काम किया है और लगातार वो काम कर भी रही है ताकि सुविधाएं इन स्थानों पर बढ़ सके और धार्मिक कार्यों में लोग अधिक से अधिक भाग भी ले सके। रामदास तड़स। जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के नागपुर सर्कल में कुल 94 स्थलों की संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल है जिनका भारत पुरातत्व विभाग के माध्यम से संभाल करना आवश्यक है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा केंद्रीय संस्कृति मंत्री से प्रश्न है कि जो ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे स्थलों की पहचान करने, इन स्थलों का संभाल करने हेतु केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेंगी? और दूसरा, 1942 क्रांति में मेरे सांसद क्षेत्र आष्टी और बेनोड़ा में जो संग्राम हुआ, उसमें जो शहीद हुए, उनके स्मारक के लिए सरकार, उसके जतन के लिए सरकार क्या करेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, ताटसे जी का प्रश्न जो है, मुझे लगता है कि हर सांसद के मन में अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि प्रसाद स्कीम जो टूरिज्म मंत्रालय की स्कीम है, उसके तहत पुरातत्व विभाग ऐसे सभी जगहों को मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हमने अभी के फेज़ में 65 ऐसी जगहें जो हैं उनको चुना है जिस पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री जाते हैं और उनकी यात्रियों की सुविधाओं की आवश्यकता है। धर्म के प्रति रुचि रखने वाले सभी स्थलों पर काम किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भारत एक धर्म स्थान की नगरी है, हर जगह पर ऐसे मंदिर हैं, तो जब तक राज्य सरकार उसका प्रपोजल नहीं भेजती है, केंद्र सरकार के लिए कार्य करना कठिन होता है और उस कठिनाई के रहते अभी इन स्थानों का प्रपोजल कोई आया नहीं है राज्य सरकार की तरफ से। जैसे कोई आएगा तो सेकेंड फेज में उसकी ज़रूर जो है उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक एएसआई से लागू जो मॉन्यूमेंट है, एएसआई के तहत 3693 मॉन्यूमेंट जो है वो भारतवर्ष में मेंटेन किए जाते हैं और ऐसे कुछ अन्य मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर जो है उनको भी लेने का प्रयास है, जिसमें तकरीबन 11 नए मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भारत सरकार उसको मेंटेन कर रही है। अभी उसको एएसआई के तहत लेगी
उसके अलावा भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जो कि यूनेस्को साइट्स में हैं, उनको भी केंद्र सरकार कल्चर मंत्रालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। मलुक नागर जी। सर, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि लोधी के समय के जितने भी पुराने पुरातत्व विभाग उनका पूरा रखरखाव कर रहा है, मुगल्स के समय के रखरखाव कर रहे हैं, और पूरे मथुरा की बात हुई, वाराणसी की बात हुई, और देश के अच्छे सब जगहों की बात हुई, अच्छी बात है। और हस्तिनापुर जहां भगवान कृष्ण जी साथ रहे हैं और ऐतिहासिक जगह है, उसमें कांग्रेसियों ने करीब 65-70 साल में पिछड़ों की वजह से गुजर, जाट, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, दलित उपेक्षित रखा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार को, 750 करोड़ रुपए के करीब दिए, लेकिन और देश के हिस्सों की तरह पुरातत्व विभाग वहां के ऐतिहासिक चीजों की किस तरीके से रखरखाव करना चाहता है, कितना खर्च करना चाहता है और कब तक कर देंगे? माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ नियम अनुसार काम करना पड़ता है, और उसमें जो साइट जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में उसको बरकरार रखना होता है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जो जितनी पुरानी साइट है तो जाहिर है कि वहाँ पर जो भी कुछ चाहे आक्रमणकारियों की वजह से या अन्य वजहों से जो भी तकलीफ रही है पूर्व में, उसके रहते हम उसकी मेंटेनेंस उसी प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नए पत्थर का इस्तेमाल या नई चीज़ें हम नहीं कर सकते, बावजूद उसके म्यूज़ियम बनाना, उसकी एक्सकवेशन करना, और वहाँ पे जो ऐसी हस्तिनापुर जैसी जो पुरानी साइट्स हैं, ऐसी तमाम साइट्स की भी रखरखाव किया जा रहा है, और उस समय के हड़प्पन साइट्स का भी रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें धोलावीरा अभी लेटेस्ट साइट है जिसको हमने यूनेस्को में भी इंस्क्राइब करवाया है। माननीय जगदीश पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने सभी सर्किट के बारे में स्वदेश प्रसाद स्कीम के तहत जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है उसके उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है 3693। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है, जो हमारी सरकार ने एक बड़े राष्ट्रीय महत्व सर्किट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी है, तो जहाँ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक कपिल वस्तु जो सिद्धार्थगढ़ एक जन्मस्थली उनकी मानी जाती है और 29 वर्षों तक रहे हैं, उसको ASI उसको प्रोटेक्ट करती है, तो क्या उसको राष्ट्रीय महत्व के उस स्मारक में रख करके, और कल्चर डिपार्टमेंट का जो एक वहाँ पे संग्रहालय है जहाँ पूरे बुद्ध सर्किट के आने वालों की मांग होती है कि जो बुद्ध का कास्केट है जो यहाँ पे रखा है, उस कास्केट 2 हैं, उसमें एक कास्केट वहाँ पे सिद्धार्थ नगर के उस गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे जहाँ 29 वर्षों तक सिद्धार्थ के रूप में रहे हैं, उस भारत सरकार के संग्रहालय में रखने का काम करेंगे, जिससे जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, इंडोनेशिया, चाइना के आने वाले बुद्धिस्ट सर्किट के उन बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों को वहीं पे उस बुद्ध के कास्केड का दर्शन करने को मिले, जो अपने आप में एक महत्व का विषय होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो मुझे सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक जो भगवान बुद्ध के रेलिक्स हैं उनको 5 स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सारनाथ है, बोधगया है, नालंदा है, कुशीनगर है और सांची है। और इसके अलावा 2 और जगह को इंस्पेक्ट किया गया है, जिसमें सांची, कुशीनगर, जहां पर बुद्ध रेलिक्स जो है वो अवेलेबल है और नेशनल म्यूज़ियम वाले उनको शायद डिस्प्ले करने की अभी डिस्प्ले के लिए ले जाया जाएगा पहले फेज़ के अंदर। और जहां तक उसका सवाल है कि सिक्योर जगह, सिक्योर डिस्प्ले के लिए, तो उसमें DRDO से बात की जा रही है और उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर ये काम किया जाएगा। बता दूंगी। गीता विश्वनाथ। नहीं, आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं है।
ये जो प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम हुआ है वो गीता काम के विश्वनाथ। बारे में बता रही हूँ मैं। गीता विश्वनाथ। 5 स्थानों पर। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, I congratulate the minister, Honorable Minister Meenakshi Lekhi ji, and she has given a detailed reply. But I would like to ask the what steps have been taken to improve the capacity of archaeology survey of India in order to boost their conservation and preservation efforts with respect to the monument of national importance. Is the government is planning to involve private players or introduce public-private partnership to conserve the preserve monuments of national importance? And I would like to know from the Honorable Minister, is there any plan to identify and improve the temples and historical monuments of southern parts of India? How is the government to conserve and preserve such great heritage sections of past generations of South in India? Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, दक्षिण भारत के भी जितने मंदिर हैं और अन्य स्थान हैं उनको ASI देखरेख करती है, लेकिन इसमें कई सारी जगहें राज्य सरकार के पास होती हैं और उनमें राज्य सरकार को देखरेख करने का आदेश होता है। और इसके अलावा जहां तक क्षमता बढ़ाने का प्रश्न है, उसके तहत मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूं कि इसमें जो टेक्निकल लोग हैं जिनको ये कार्य करने की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कमी है देश में, और एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी, जिसमें हर प्रकार की एकेडमिशियन से लेकर जो लोग इसमें काम करेंगे आर्कियोलॉजी के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्किल्स के लिए कार्य किया जाएगा। कृपानाथ मल्ला, क्वेश्चन नंबर 303। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। सुजय विले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, कोविड के समय पे मिड डे मील प्रोग्राम में पैंडेमिक होने की वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र स्कीम शुरुआत की थी। सर, इसका यूटिलाइजेशन न करते हुए देश में काफ़ी राज्य सरकारों ने सूखा राशन सामग्री यानी कि कॉम्बो पैक का वितरण बड़े प्रमाण में किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी इस पर सुनने को आया है। सर, जब डीबीटी की प्रोविज़न की गई थी तो उसमें किन किन राज्यों ने ये सूखा राशन है कॉम्बो पैक वितरण किया, और जिन जिन राज्यों ने इस कॉम्बो पैक का वितरण किया है उस पर आज केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सर। थैंक यू। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है पीएम पोषण, और इसके माध्यम से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जब कोविड पैंडेमिक के समय दोनों ही स्थिति में वो डीबीटी के माध्यम से और ड्राई राशन के माध्यम से देने का प्रावधान था, और जहाँ भी जिस भी राज्य में अगर इस तरह की कोई सूचना मिली, अनियमितता की सूचना मिली, तो उस पर कार्रवाई के लिए भी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। और लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे इस तरह की अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली कि किसी राज्य ने डीबीटी के माध्यम से या फिर ड्राई राशन कोविड पैंडेमिक के समय बच्चों को नहीं दिया। अगर इस तरह की सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे देश के 11,20,000 स्कूलों में और लगभग 11,80,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से विटामिन युक्त भोजन दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे घर से थाली लेकर के, कटोरी लेके जाते हैं और दोपहर में लाइन में खड़ा होकर के उनको जब खाना दिया जाता है
उस समय पर बच्चों की मनोभावना को मैंने खुद अनुभव किया है कि वो बहुत दीनहीन महसूस करते हैं। आज के समय पर बहुत ऐसे प्रोटीन युक्त ड्राई फ्रूट आ चुके हैं, अगर ये चावल और दाल और सब्जी के जगह पर अगर प्रोटीन युक्त कोई ड्राई फ्रूट दिया जाए, मैं समझता हूं क्या इस पर सरकार कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष जी, इसमें गर्म खाना देने का प्रावधान है और पीएम पोषण के माध्यम से, जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे और हम गर्म और पौष्टिक खाना के माध्यम से बच्चों को हम अच्छा भोजन दें। और इसके साथ ही साथ कई व्यवस्थाएं, जिस तरह से उन्होंने थाली की बात कही, तो राज्य सरकार, चूँकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर से, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि उन्होंने बर्तन भी दिए हैं और अन्य इसके अलावे जो पीएम पोषण के माध्यम से मिलता है, इसके अलावे भी सप्लीमेंट्री भोजन के तौर पे वो कुछ देते हैं। तो राज्य सरकार चाहे तो वो व्यवस्था कर सकती है। क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन नंबर 304 डॉक्टर सुकंद मजूमदार। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्री विनोद कुमार सोनगर, विनोद कुमार सोनगर, श्रीमती रीति पाठक। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से युवाओं के कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार की तरफ से कितने पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कौशल विकास मंत्रालय के पास मेरे संसदीय क्षेत्र हेतु क्षेत्रवार सकारात्मक परिणाम की जानकारी है क्या? यदि है तो हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। ओके सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि 2015 में जब स्किल इंडिया को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, इसका एक मकसद था कि इंडिया को ग्लोबल स्किल हब बनाएं। और हमने 2018 से एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हम देश के युवाओं को ट्रेन करें ताकि वो बाहर के देशों में उनको नौकरी मिले और उनके एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो। इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था 2018 में सर, और 18-19 में हमने 1 लाख लोगों को ट्रेन किया है। सर, आगे जाके मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपको, आपके थ्रू माननीय सांसद को, कि पोस्ट कोविड एक रियलिटी बन गया है कि दुनिया के देश चाहते हैं कि इंडिया से स्किल्ड मैन पावर उनके देश में आए, और ये एक स्पेक्ट्रम है सर, फ्रॉम वाइट कॉलर टू ब्लू कॉलर स्किल्स। तो एक तो ये बता दूं सर, सांसद जी ने पूछा है कि कितने जॉब रोल्स के ट्रेनिंग होते हैं। 4600 डिफरेंट ट्रेनिंग और स्किलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और अगर वो अपने सांसद क्षेत्र के बारे में डिटेल्स चाहते हैं वो हमसे मिले और हम उसको डिटेल्स दे सकते हैं सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 305 श्रीमती प्रतिमा मंडल। माननीय सदस्य जाइए, आपका नाम है क्वेश्चन। केजी माधव। Thank you, sir. Sir, my question is 304, sir. 304. In order to provide आपका 304 छोड़ो। job opportunities to Indian youth in other countries, it is no. important that skill enhancement is focused. नो। Sir, क्वेश्चन नंबर 306 श्री राकेश सिंह। राकेश सिंह 306 टेबल पे रखा गया। श्री जी गुरुमूर्ति। Thank you, Honorable Speaker, sir.
The forest landscape restoration increases carbon absorption from the atmosphere. At the same time, it promotes biodiversity and rural livelihoods. Can the minister state the details of the policy found from the promotion of forest landscape restoration in India? Communities living inside and near forested landscapes have a major role in promoting forest landscape restoration. Some of the community-led forest landscape restoration approaches practiced by forest communities in India suggest alternative approaches in forest governance. Can the minister provide details about the steps taken to promote community-led forest landscape restoration in India? Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं की जा रही हैं, निश्चित रूप से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू करी है। विशेष रूप से अफॉरेस्टेशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया और सरकार के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना भी की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के अतिरिक्त जो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसको 2002 में लॉन्च किया गया था। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 50,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो एक कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री में यूज़ की गई है। राज्य स्तर की फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ भी काम किया जा रहा है और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से ट्राइबल मंत्रालय के साथ मिलकर के भी फॉरेस्ट मंत्रालय ने एक कार्य योजना, एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया है और निश्चित रूप से फॉरेस्ट क्षेत्र में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 307, नाव श्री कृष्णा। सर क्वेश्चन नंबर 307 सर। 307 माननीय मंत्री जी 307 जी उत्तर सभा पटल पे रखा गया है जी। Sir, gig workers have been doing great service for the last 2 to 3 years, and most importantly during the time of pandemic they have done a lot of service, sir, with regards to delivering of food, to taxi services and everything, sir. But still we are not taking care of them enough, sir. Right now they have, as per the records, they have 1.5 people that are working as gig workers, and this number is going to increase to 9 crores in the coming years, sir. But India does not have a definition of the gig economy, unlike the other sectors like MSME, sir. Is there a plan to define the gig economy clearly so that there are no loopholes in providing social benefits to the gig workers, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, भारत में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो नया एक कोड हम लेकर के आए हैं उसमें गिग वर्कर की परिभाषा को तय किया गया है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है उसमें एग्रीगेटर की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन जो 35 है उसमें गिग वर्कर की भी परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त भी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 60 में प्लेटफॉर्म कार्य की परिभाषा और सेक्शन 2 के सबसेक्शन 61 में प्लेटफॉर्म वर्कर की भी परिभाषा तय की गई है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने अभी ई श्रम कार्ड को भी लॉन्च किया है और ई श्रम कार्ड में जो गिग वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी उनके इंश्योरेंस की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। Sir, the Social Security Code states that the Union government can bring in a scheme to provide for minimum wages, timely payment, pensions and insurance. However, no such scheme exists currently, sir. In the absence of a scheme, the gig workers does not have the adequate protection. When does the Union government plan to bring in a scheme with respect to the gig workers on the same line, sir? Thank you. जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है उस सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सेक्शन 141 है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा कोष की परिकल्पना की गई है। और इस कोड के अंतर्गत जो अन्य धाराएं बनाई गई हैं सेक्शन 109, सेक्शन 114 में गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक के संबंध में भी ये व्यवस्था की गई है। ये कोड के लागू होने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। श्री केजी अमरप्पा, माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभा पटल पे रखा गया है।
तेजस्वी सूर्या। क्वेश्चन नंबर 309 डॉक्टर रवि कुमार। माननीय मंत्री जी। रखा गया है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 310 वीके श्रीकंदन। माननीय मंत्री महोदय। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 311 सुनील कुमार सिंह। 311 सुनील कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी। पर रखा गया है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 312 श्री रक्षा निखिल खाड़ से। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 313 श्रीमती भावना पाटिल। माननीय मंत्री महोदय। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 314 पीपी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 314 पीपी चौधरी जी। राजेंद्र अग्रवाल जी। जी धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बड़ा विस्तृत उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हापुड़ जनपद में किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण केंद्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत न प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और न ही PMKVY एक भी केंद्र नहीं है। ITI वहाँ पर अवश्य हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण होता है, परंतु इस प्रकार के केंद्र के अभाव में उनका समायोजन भी ठीक से नहीं होता और जो प्लेसिंग है वो लगभग उपेक्षित रहती है। तो प्लेसिंग का मैं आंकड़ा कई बार दिशा की मीटिंग में पूछता हूँ तो उसका समाधान कारक उत्तर नहीं आता। तो मेरे दोनों बातों को संज्ञान में लेते हुए ये केंद्र कब हो सकता है और किस प्रकार से इसकी प्लेसमेंट की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हो सकती है, कृपया माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ बताएं। सर, जैसे सांसद जी जानते हैं सर, हमारे स्किल इंडिया के नेटवर्क जो है कंसिस्ट ऑफ ITIs, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हम ट्रेनिंग सेंटर्स और PMKK से करवाते हैं और सब हम अप्रेंटिस प्रोग्राम भी करते हैं सर NAPS के द्वारा। सर ये बात सही है कि ड्यूरिंग कोविड काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स या तो बंद किए गए हैं या वो जो ट्रेनिंग पार्टनर्स थे वो ट्रेनिंग के इस सेंटर की एक्टिविटी से वो निकल गए हैं। हम हमारे मंत्रिमंडल और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जॉइंट एक एफर्ट है सर, हम नए 2000 स्किल हब बनाएंगे और हम सांसद के साथ बैठ के उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हम प्लान करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 315 श्री AK-P चिनराज। माननीय मंत्री महोदय। is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। क्वेश्चन नंबर 316 डॉक्टर थोल थिरमा वलन। माननीय मंत्री महोदय। जी उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 317 गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के सदस्य श्रीमद् भागवत गीता पढ़े ताकि अच्छा काम करने के लिए इनको ज्ञान प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे आधा समाधानी हो और आधा समाधानी नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था में भागवत गीता पढ़ाई जाए। और इसलिए मंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सभी राज्य सरकारों से बातचीत करके देश का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तब पूरे देश में सभी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सोच रही है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है तो अभी बहुत ही विस्तृत जवाब उनको हमने दिया और अभी भी क्लास 6, क्लास 8, क्लास 7 में भागवत गीता के कुछ पाठ्यक्रम में है और भागवत गीता की पढ़ाई होती है।
अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी, उत्तर में ये कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों ने इसके बारे में निर्णय लेना अनिवार्य है। मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने भागवत गीता का बहुत ही वो कट्टर समर्थक थे। तो मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार इन दिनों में उद्धव जी वहां पर मुख्यमंत्री है, तो वो तो इसका समर्थन ही करेंगे। जैसे उद्धव जी समर्थन करेंगे वैसे लगभग सभी राज्यों के सरकार भी इसके बारे में समर्थन देंगे। तो मैं चाहूँगा फिर एक बार सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सभी देश के स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था करेगी क्या? अध्यक्ष जी, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है तो राज्य सरकार चाहे तो अपने कैरिकुलम में वो ऐड कर सकती है, लेकिन अभी लगातार हम ये मान्य सदस्य को भी हम ये देंगे कि अभी जो CBSE पैटर्न पे जिस हर एक कई क्लास में भगवत गीता की पढ़ाई होती है और राज्य सरकार चाहे तो ऐड कर सकती है भगवत गीता को। क्वेश्चन नंबर 318 गौरव गोगोई जी। सर, मंत्री को बर्खास्त करिए, सरकार किसको बचा? माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। गजानन कीर्तिकर जी। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री महोदय। गजानन कीर्तिकर जी। क्वेश्चन नंबर 320 डॉक्टर संजय जायसवाल। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये भोजपुरी जो है सर, अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। शिक्षा समवर्ती सूची में है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से रीजनल लैंग्वेज को अपने को बढ़ावा देना है। तो भोजपुरी का जो इतने दिन से डिमांड चल रहा है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भोजपुरी को क्लास 1 से लेकर 12वीं तक CBSE में और कॉलेज में शामिल करने के लिए राज्यों के ऊपर कोई दबाव बनाने की कृपा की जाएगी या भोजपुरी को उसकी जो मान्यता है वो दी जाएगी? अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा, शिक्षा समवर्ती सूची में है और साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। इसके माध्यम से भी राज्य भोजपुरी में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जहां तक सवाल है राज्यों को बताने की, तो निश्चित रूप से समय समय पर भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती है और राज्य सरकार चाहे तो उस पर अमल करे और 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई वो कराए। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, आप अपनी सीट पर जाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण सवाल थे। आप सीट पे विराजेंगे तो महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्या का समाधान होगा। TR बालू जी, आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं सदन में, आपके सदस्य बेल में आते हैं। एक अच्छी परंपराएं बनाए सदन में। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है उनके सवाल उठाने के लिए, उनके अभावों को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि आप अपनी सीट पर विराजें। गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए सदन में। सदन की गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की संसद। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं यहाँ पर? यह उचित है आपका व्यवहार? सदन के नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। यह हम सबका दायित्व है कि सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको सभी समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की इजाजत दूंगा।
पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।